So guys, welcome back. Welcome to one more video. Today we have this special guest, 100 percentile scorer and all Maharashtra rank 2, Prerna. Prerna, please give introduction about yourself, name, branch and percentile that you got in CET and marks अगर आपको like remember हुआ तो. Okay, so my name is Prerna Devan and I scored 100 percentile in MHT CET and I am from COEP CS branch. Okay, the marks out of 200? I think I have not calculated, but as far as I remember, it's 192 something. ओके ओके तो प्रेरणा विल डायरेक्टली जंप अपॉन क्वेश्चंस. तो कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की थी, उसमें जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के बेसिकली वो लेंगे एंड विल कंप्लीट द इंटरव्यू. ओके, तो पहला लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. तो आपका 11th 12th ओवरऑल कैसा था? So I joined an offline institute for JEE preparation. So starting few months I didn't prepare that much, like I don't used to study. So I started my preparation from September in 11th and after that I used to have a good study hour, like 5-6 hours per day minimum I used to study. Okay. How did you prepare maths, physics and chemistry separately? So for maths, basically you'll have to practice. Without practice, maths is not possible because maths may you need a lot of time. So there are many questions that it will take you half an hour, 40 minutes to solve. So if you don't improve the speed in maths, then it is quite difficult. पहले concept सीख लो and try a lot of questions for maths. Like मैथ्स में क्वेश्चंस करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व. मैथ्स उसके बिना हो ही नहीं सकता. फिजिक्स में डू द थेरम्स, द प्रूफ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रूफ चाहिए. सो विदाउट द प्रूफ यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो प्रूफ पहले करो एंड देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फिजिक्स में ऑल्सो यू नीड कंसेप्ट ऑल्सो एंड द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो, बोथ. In chemistry, I guess reading is more important. Like inorganic, you have to learn that. Just make separate books, write some separate equations, and just you can revise it every day. Like make some short notes, stick it in your room, and just revise it. Go through it. And for physical, if I would say physical, mein you have to practice. Physical, like most of them think physical is difficult. For me, physical was easier than organic and inorganic. So physical is easy, but just practice is important. That was all for physics, chemistry, mathematics. Next question कि अपने books कौन सी use करी थी अपने preparation के time पे for physics, chemistry and mathematics separately? I didn't buy as such books for CET because I was preparing for JEE. So after my JEE attempt, I went for Arihant maths. So I did maths from there, previous year questions, PYQs, and physics and chemistry I did whole PYQs only. Like I didn't refer any other book. I went for PYQs and I did it from there only because it is important. And like there are many questions which are repeated from JEE also. They are taken from JEE and they are given in CET. सो लाइक एवरीवन से CET के लिए अलग से करना पड़ता है. JEE ऑल्सो यू प्रिपेयर एट सम एक्सटेंट क्योंकि JEE के भी क्वेश्चंस आते हैं CET में. JEE के रिपीटेड क्वेश्चन, मेंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. आई हैव सीन दैट कि VIT के, बिट्स के, तो वो क्वेश्चंस आते हैं. सो डू दैट ऑल्सो, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपने क्वेश्चन की बात करी है तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में. स्पेशली अगर न्यूमेरिकल्स की बात करी जाए तो फिजिक्स और मैथ्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में थोड़ा टफ जाता है. तो हाउ टू डील विद दैट कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करें इवन आफ्टर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्टिल दिक्कत आती है. तो हाउ टू डील विद दैट? फिजिक्स में कंसेप्ट्स कर लो पहले, क्योंकि अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. यू नीड टू नो एवरी स्मॉल थिंग अबाउट दैट कंसेप्ट एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. बिकॉज कंसेप्ट पहले कर लो एंड स्टार्टिंग में टाइम लगेगा. फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी टाइम लगेगा, मैथ्स के क्वेश्चंस को भी टाइम लगेगा. बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, तो वो अपने आप तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुमको क्लिक भी होगा कि क्वेश्चन में क्या चाहिए एंड व्हाट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू. तो छोटे छोटे ट्रिक्स भी होते हैं बहुत सारे कि कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं एंड यू कैन नॉट स्पेंड दैट मच टाइम ऑन दैट क्वेश्चन. तो ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे विच यू गेट, विच योर टीचर्स ऑल्सो टेल. सो वो ट्रिक्स फॉलो करो क्योंकि वो 5 मिनट का क्वेश्चन होता है पूरा. अगर सॉल्व करने ले लो, बट अगर वो ट्रिक पता है तुमको तो 30 सेकेंड्स में वो सॉल्व हो जाता है. लाइक इन फिजिक्स, नॉट इन मैथ्स. मैथ्स में यू हैव टू सॉल्व दैट, बट फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है. मैथ्स के क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर दैट. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके,
तो ये थी फिजिक्स और मैथ्स के बारे में। तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो अगर स्प्लिट करेंगे केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो आपने उसको सेपरेटली प्रिपेयर कैसे करा था? व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक, HSC टेक्स्ट बुक रीड करो, उससे बाहर से नहीं आता है, लाइक प्रोबेबली नहीं आता है। जितना मैंने देखा है HSC टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो उसको रट लो, उसके बाहर नहीं आएगा, बिलीव मी। एंड PYQs करो केमिस्ट्री के लिए भी और इसके लिए, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के लिए भी यू हैव टू डू द PYQs। फिजिकल कुछ लोगों को लगता है इट्स हार्ड, वो हार्ड नहीं है, तुम सॉल्व करो, इट इज़ ईजी, बिलीव मी। तुमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट अगर याद नहीं रहेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिजिकल में अगर तुमको वो फॉर्मूला याद है तो यू कैन सॉल्व इट। तो ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक की जो इक्वेशंस होती है उसके लिए एक अलग बुक बनाओ, उसमें इक्वेशंस लिखो एंड मार्क। जो इक्वेशंस तुमको याद नहीं रहती है ना, उसको मार्क करके रखो, सो दैट वो तुम लाइक एटलीस्ट अगर रोज़ भी नहीं होता है तुमको, तो हफ्ते में एक बार यू कैन गो थ्रू इट, तो तुमको याद हो जाएगा, यू विल नॉट फॉरगेट दैट। तो उसको रिवाइज करते रहो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहना चाहिए, नहीं तो यू विल फॉरगेट दैट। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कंटिन्यू रिविजन इज मस्ट। सो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो तुमको उतना लास्ट में नहीं पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करनी पड़ती है। जैसे तुम पहले पढ़ते थे वैसे तुम पढ़ोगे, पर स्टार्टिंग में 5-6 आवर्स दो, क्योंकि स्टार्टिंग में 11th में कैसे होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते एंड 10th में अपना लेवल बहुत कम रहता है। एंड व्हेन यू कम 10th में, तो 11th में व्हेन यू कम तो वो बढ़ जाता है, वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो ऑल दोज थिंग्स आर न्यू, तो उसको ज़्यादा टाइम दो। अगर वो तुम्हारा रह गया तो फिर तुमको फ्यूचर में वो 12th में भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो करते रहो उसको, वो बेसिक पहले करो। अगर तुम पहले से नहीं कर रहे हो तो आफ्टर दैट यू विल सफ़र। तो पहले 5-6 आवर्स एक गो में नहीं होता, यू हैव टू टेक ब्रेक्स, लाइक स्टडी फॉर 2 hours, टेक अ 15 minutes ब्रेक, और इफ़ यू आर नॉट ready to sit like 2 hours 3 hours, you can study for 40 minutes, take 5 minutes break, and then you can increase the sitting time. So like if you're studying in 12th, you're starting from 12th, then you have to study for more hours, like 10 hours 11 hours 12 hours, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, it will affect your health also. So I believe पहले से थोड़ा थोड़ा करके रखो, नहीं तो लास्ट में बर्डन आ जाएगा, फिर यू विल थिंक मेरे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, आई एम लेफ्ट बिहाइंड, तो वो एक हो जाता है कि पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ डिप्रेशन अलग आ जाता है। सो डोंट डू दैट, पहले से करो। अगर नहीं मतलब अगर बैकलॉग्स भी होंगे तो सैटरडे संडे यू डोंट हैव द लेक्चर्स लाइक ऑफलाइन कोचिंग्स, सो उस दिन पे तुम कवर कर लो। बैकलॉग्स भी अगर रहे तो वो 2 दिन में कवर कर लो। अगर एक सैटरडे संडे में नहीं होता है तो नेक्स्ट सैटरडे संडे, तो ऐसे बैकलॉग्स भी धीरे धीरे कवर कर सकते हो, पर पहले से करो। अगर बाद में कर रहे हो तो इट विल अफेक्ट, थोड़ा ना थोड़ा वो इफेक्ट करेगा तुम्हारे स्कोर पे। मतलब अभी भी भैया टाइम है आपके पास, अगर कोई बच्चे 12th में जिनके बैकलॉग क्रिएट हुआ है, अभी भी टाइम है और थोड़ा दम लगा के हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अक्टूबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकी, बाद में बोर्ड्स के स्टार्ट हो जाएंगे, प्रीलिम्स वगैरह, लैब्स वगैरह, तो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स प्लस CET अब से? आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होगी। एटलीस्ट तुमको थोड़ा बहुत तो आता होगा। नाउ यू जस्ट, बाकी का छोड़ो, अभी एंटरटेनमेंट सब कर लिया तुमने अभी तक। नाउ यू कैन स्टार्ट स्टडिंग, ज़्यादा टाइम दो। अगर तुम बोर्ड्स के HSC के वगैरह टेक्स्ट बुक कर लेते हो ना, तो बोर्ड्स निकल जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। PYQs करो, क्योंकि बोर्ड्स में ना ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेड, तो वो एक बार तुम देखो। अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हो ना, यू विल गेट कि 6 years के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इवनली आफ्टर एवरी 6 years, तो वो कर लो, क्योंकि वो है क्वेश्चन जो हर 6 साल में रिपीट हो रहा है। सो डू दैट फर्स्ट। एंड फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश को बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हो जाएगा यार, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इंग्लिश में ना टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जिनका 8 मार्क का, 10 मार्क का, 12 मार्क का पेपर ही छूट गया था। तो इंग्लिश में मॉक टेस्ट 2-3 मॉक टेस्ट मिनिमम दो, क्योंकि मैंने भी जब पहला मॉक टेस्ट दिया था मेरे को 3.5 घंटे 4 घंटे लगे थे पेपर के लिए। सो मॉक टेस्ट 2 इंग्लिश का, पेपर हार्ड नहीं आता इंग्लिश का, लेंदी आता है, तो मॉक टेस्ट 2 इंग्लिश का, उसके बिना पेपर नहीं होगा पूरा कंप्लीट। देन यू विल फील कि यार मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं है।
इंग्लिश में कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं राइटिंग स्किल्स के, लाइक मूवी रिव्यू, फिल्म रिव्यू बोल के रहता है. सो दैट इज़ अप टू यू. तुम घर से प्रिपेयर करके जाना होता है. उधर दे डोंट गिव यू कि ये मूवी के ऊपर लिखो. तो दैट इज़ वन थिंग कि तुम पहले से करके जा सकते हो. यू जस्ट लर्न एंड गो देयर. तो तुमको 5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं. फिल्म रिव्यूज़ दैट कि मिल जाते हैं मुफ्त के मार्क्स. डू दैट. लेटर राइटिंग एंड वो सब तो 10th तक किया ही होगा सब में, क्योंकि सबके स्कूल में वो पढ़ाया जाता है. तो दैट इज़ नॉट हार्ड. बस तुमको इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट करना होता है. एंड द अदर सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS जिसका होता है, तो एवरीवन टेल्स कि भाई लास्ट के 10 दिन में हो जाएगा, डोंट वरी, लास्ट में कर दो. मत करो, ऐसे नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं होता है. क्योंकि अगर तुमको CS है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर को 10 दिन का गैप है, तो उसके बाद तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को एक दिन का ही गैप रहता है. तो एक दिन में आर यू गोइंग टू रिवाइज और आर यू गोइंग टू गिव द मॉक टेस्ट. तो उस 10 दिन में तुमको वो भी पढ़ाई करनी पड़ती है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स और CS 2 पार्ट्स में होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं उसके. तो क्या करो, दोनों इसका पहले 1, 2, 3 चैप्टर करके रखो. तो बाकी के 2-3 तुम वो 10 दिन में कवर कर सकते हो. क्योंकि अगर वो 10 दिन में सिर्फ तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स और CS किया तो PCM कौन करेगा? क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए. वो तुमको आता भी होगा तो रिटर्न आना चाहिए, बिकॉज हमको MCQ की प्रैक्टिस रहती है. तो व्हेन यू गो फॉर डिस्क्रिप्टिव देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स CS का पहले 1-2 चैप्टर करके रखो. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आते हैं वही होते हैं. टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वही आते हैं. वो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं. इधर लिखा भी होता है टेक्स्ट बुक्स में कि ये साल ये क्वेश्चंस आए. तो डू दैट, क्योंकि उसमें से ही आते हैं, उससे बाहर नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक्स के उसके. और उसमें डायग्राम्स बहुत होते हैं. तो डायग्राम्स याद रखना इज़ नॉट ईजी. जो 10 दिन में हो जाएगा बोलते हैं तो उनका स्कोर भी वैसे कम आता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स पहले करो. मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 चैप्टर मैंने पहले करके रखे थे. आई डेंट डू इट इन दैट 10 डेज. क्योंकि ऐसे होता है, माइंडसेट वैसे हो जाता है कि भाई 10 दिन है, कभी भी कर सकते हैं, कल करेंगे. दैट प्रोक्रास्टिनेशन हैपन्स एंड यू डोंट डू एनीथिंग. तो लास्ट के 2 दिन में यू रिमेंबर, अरे यार ये सब बाकी है. सो डोंट डू दैट. पहले से करो, 2-3 चैप्टर्स दोनों का करके रखो, सो दैट PCM भी तुम्हारा मैनेज हो जाएगा. PCM का भी तुम रिविजन करो और 1 दिन का जो गैप तुमको मिलता है उसमें तुम मॉक टेस्ट दे सकते. मतलब जो लास्ट का टाइम रहता है, बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JEE, CET, NEET, वॉट. तो लास्ट के 1 मंथ में हो जाता है बोर्ड्स का प्रिपरेशन. बोर्ड्स का प्रिपरेशन हो जाता है क्योंकि PCM तुम्हारा ऑलरेडी कंसेप्ट एंड ऑल क्लियर रहता है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली तो PCM को यू डोंट हैव टू वरी. इंग्लिश का मैं अगर बोलूँ तो इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है. डोंट वरी अबाउट दैट. तुमको अगर कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इंग्लिश उठा लो, लेक्चर लगाओ, लेक्चर सुन लो. एक चैप्टर ऐसे ही हो जाते हैं. तो इंग्लिश का डोंट वरी. लेक्चर्स देखो, जब बोर हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू स्टडी, गो फॉर इंग्लिश. दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई ऑल्सो डिड. कि मेरे को अभी अगर बोर हो रहा है तो आई यूज़ टू डू इंग्लिश एंड गिव मॉक टेस्ट. तो करो, वो हो जाता है. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. थोड़ा पहले अगर करके रखोगे तो तुमको भी बर्डन नहीं आएगा. अगर बाद में लास्ट में करोगे तो बर्डन डेफिनेटली आएगा. फिर देन यू डू, रात भर जगोगे, फिर एग्ज़ाम कैसे दोगे, वो सब प्रॉब्लम आएगी तुम. अभी अपने मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताया कि मॉक टेस्ट एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट रहता है. तो आपके मॉक टेस्ट के सोर्सेज क्या आते हैं एंड स्ट्रैटेजी क्या आती है, आप कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे CET के लिए? सो CET के अगर मैं मॉक टेस्ट का बोलूँ तो मैंने एक अलग से लगाया था लास्ट में, लाइक 1.5 months पहले. तो उनका ऐसे था कि पर सब्जेक्ट 5 टेस्ट दिए थे. मतलब लाइक फिज़िक्स के 5 टेस्ट, केमिस्ट्री के 5 एंड मैथ्स के 5, ऐसे मैंने दिए थे. एंड ओवरऑल पूरा मॉक टेस्ट ऐसे मैंने 5-6 दिए थे. क्योंकि मतलब मैथ्स को तुमको ज़्यादा टाइम मिलता है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो नहीं होता है बहुत लोगों का कि मैथ्स में फिर बाद में तुक्के लगाने पड़ते हैं, बट सारे नहीं लगा सकते. इफ़ यू आर मतलब तुक्का भी लगा रहे हो तो ज़रा लॉजिकली थिंक करो. 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ही नहीं होगा. डोंट जस्ट ब्लाइंडली टिक टू दैट ऑप्शन. उसमें से 2 ऐसे ऑप्शन होंगे जो सिमिलर है, जिसमें से एक हो सकता है, तो तुम उसको लगा. ऐसे ब्लाइंडली कोई भी A चाहिए या D चाहिए, डोंट डू दैट. क्योंकि देर आर मेनी टाइम्स कि तुक्के सही लग जाते हैं. सो वैसे भी होता है. फिज़िक्स और केमिस्ट्री का बैलेंस करो. केमिस्ट्री पहले करो, जल्दी हो जाता है. फिज़िकल को थोड़ा टाइम लगेगा. ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो लर्निंग पार्ट होता है, तो वो जल्दी हो जाता है. गिव 30 minutes टू केमिस्ट्री,
उसके बाद यू जस्ट शिफ्ट टू फिज़िक्स, पहले फिज़िक्स कर लो और फिर 10 मिनट बाद में बचा के रखो, सो दैट जो आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बचाए थे जो नहीं सॉल्व किए थे वो, और फिज़िक्स का 1-2 क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बने थे वो वापस ट्राई कर सको, क्योंकि बाद में व्हेन यू शिफ्ट टू मैथ्स यू कैन नॉट कम हियर। तो सीईटी में वो एक होता है कि यू कैन नॉट शिफ्ट दैट, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट फिज़िक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा करना पड़ता है। मैथ्स का हो भी जाता है बट फिज़िक्स केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले कौन सा करूँ बाद में कौन सा करूँ। तो जस्ट मैनेज, लाइक अगर तुमको लग रहा है फिज़िक्स मेरा ईजी है तो फिज़िक्स करो पहले, मतलब अगर नहीं तो तुम केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, सब लोग बोल रहे तो, बट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो तुम स्टार्टिंग में डीमोटिवेट हो जाओगे कि मुझसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे, तो फिर बाकी का जो पेपर बचा है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट तुमको ईजी लगता है वो पहले स्टार्ट करो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट। तो वन मोर अनाउंसमेंट गाइस कि हम भी इस साल से फ्री में मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो 28 अक्टूबर से जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। मोस्टली ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट सीरीज फ्रॉम 28 अक्टूबर, फ्री में रहने वाले, एंड ये स्टार्ट होंगे वेबसाइट पे। एज ऑफ नाउ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे पहले ही लाइक नियरली 1000 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। तो वहाँ पे हम संडेज को भी वीसी लेते हैं, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा टेलीग्राम ग्रुप से एंड मॉक टेस्ट से। तो प्रेरणा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट टाइम मैनेजमेंट? इफ़ वी वांट टू लाइक तीनों सब्जेक्ट को अपन को लाइक यू टोल्ड कि मैथ्स में टाइम लगता है, ठीक है, देन स्विच करना पड़ता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे अगर इम्प्लीमेंट करा जाए एंड कैलकुलेशन स्पीड भी कैसे इम्प्रूव करी जाए? तो मैथ्स में टाइम लगता है, लाइक मुझे भी मैथ्स में स्टार्टिंग में आधा घंटा 1 घंटा से लगता था। तो वो लग रहा है तो यू डोंट थिंक यार मुझसे ही हो रहा है, नो, वो सबसे होता है। यू आस्क योर फ्रेंड्स, दे विल टेल यू, कुछ ऑनेस्टली भी बोलेंगे कि हाँ भाई मुझसे नहीं बन रहा है, मेरे को टाइम लग रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं यार मेरा तो बन गया। डोंट बिलीव, सबको टाइम लगता है, मैथ्स इतने जल्दी नहीं बनता। तो तुम करते जाओ, डोंट लूज़ होप, लास्ट तक करो, स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। एंड लास्ट में व्हाट यू कैन डू इज़ पुट द टाइमर ऑन, लाइक जस्ट इवेल्युएट कि मुझे अगर ये क्वेश्चन 3 मिनट में होना चाहिए तो 3 मिनट में हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो ट्राई सॉल्विंग दैट सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन ज़रा लेंथी होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो समटाइम्स यू कैन यूज़ शॉर्टकट्स और फॉर्मूलेज याद रखो। अगर फॉर्मूलेज भूल गए ना तो उस टाइम पे फॉर्मूला नहीं याद आता तो आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो फॉर्मूलेज ऐसे, मतलब मैंने तो किया था फॉर्मूलेज एंड ऑल, मैंने एक शीट पे लगा के मैंने वो अपने रूम में लगा के रखा था। एवरी मॉर्निंग आई यूज़ टू गो थ्रू इट, लाइक मैथ्स के लिए एंड फिजिक्स के लिए। एंड तुम मॉर्निंग में या लाइक ब्रश करते हो तब यू रोम हियर एंड देयर, सो यू जस्ट कैन गो थ्रू दैट चार्ट सो दैट यू डोंट फॉरगेट दैट। बच्चों को ना एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है, वो लेक्चर्स करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, बट व्हेन इट अबाउट गिविंग एग्जाम और गिविंग मॉक टेस्ट उस टाइम पे उनको डर सा लगता है। तो हाउ टू ओवरकम दैट एग्ज़ाम फियर? सो एग्ज़ाम फियर नहीं होना चाहिए, लाइक सबको पहले होता है। डू वन थिंग, हमारे क्लासेस में क्या होता था कि वीकली हमारे टेस्ट चलते थे, लाइक वी यूज्ड टू हैव मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स एंड संडे को टेस्ट। सो वी हैड दिस फॉर अबाउट वन ईयर। तो अगर तुम इतने बार एग्ज़ाम्स दे रहे हो सो यू डोंट फील कि मैं अभी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे जा रहे हैं हम। सो वो स्टार्टिंग में होता ही है, सबको ही होता है, मुझे भी होता था एग्ज़ाम फिर एग्ज़ाम को नहीं जाना है। लाइक डोंट, इट डजेंट मैटर कि तुमको स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर डजेंट मैटर, क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम खुद को इवैल्यूएट कैसे करोगे? यू डोंट नो स्कोर कम आ रहा है, लेट इट बी, तुमको समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम फियर इज़ नथिंग, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो एंड घर पे बैठ के मत दो, बाहर जाके कहीं दो जहाँ पे कोई इन्विजिलेटर होगा जो देखेगा, विल टेल यू डोंट चीट, वैसे करो। अगर घर पे ही दे रहे हो तो आस्क योर मॉम, योर डैड, योर सिबलिंग, समवन टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू डोंट चीट। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो सो दैट जब तुम सीटी के लिए जाते हो तो यू डोंट फील एनीथिंग। लाइक मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो व्हेन आई वेंट फॉर सीटी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि आई एम गिविंग द एग्ज़ाम, इट्स लाइक ठीक है आई एम गिविंग द मॉक टेस्ट। तो वो बहुत सारे दो, तुमको आदत पड़ जाएगी। नहीं तो सीरीज़ लगा लो, सीरीज़ में भी स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन होता है तो उससे भी हो सकता है। नहीं तो आस्क योर पेरेंट्स टू सिट, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आई थिंक योर पेरेंट्स कैन गिव 3 hours at least at night to you, they can sit in front of you, you can give the test, so that is the best option you can. ऑप्शन टू ओवरकम द फियर कि
उस फियर को ऐसे ओवरकम करो कि उस फियर के साथ ही बहुत बार खेल लो, मतलब वो फियर ना लगे। ओके, तो हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। बहुत बच्चे रहता है कि आगे कर रहे हैं बट पीछे का छूट रहा है। सम ऑफ देम उनने 11वीं वेस्ट करा है, दो डायरेक्टली शिफ्टेड टू 12th और अभी उनको दे क्लिक कि भाई अभी लेट हो चुका है। तो हाउ टू क्लियर दैट बैकलॉग अलॉन्ग विद दैट जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में अभी चालू है वो भी कंटिन्यू करना है। सो अगर तुमने 11th वेस्ट कर दी है तो 12th में जो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लो। जो वो पढ़ा रहा है उसको भी रिवाइज करो, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करो। उसको छोड़ के जो पीछे का जो तुम्हारा छूट गया है, जो पार्ट तुम्हारा छूट गया है, उसको अलग से टाइम दो, 2-3 घंटा उसके लिए। बैकलॉग्स के लिए मेक अनदर सेशन ऑफ 2-3 आवर्स। इफ़ फिज़िक्स का ज़्यादा छूटा है तो पहले फिज़िक्स का कर लो। लाइक यू कैन डू लाइक मंडे को फिज़िक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को मैथ्स, यू कैन डू लाइक दिस। एंड थोड़ा 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 करके वो करो, एक साथ मत ऐसे करो भाई अभी जो चल रहा है वो तो मैं सुन रहा हूँ, आई रिमेंबर दैट। वैसा नहीं होगा, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसका भी रिविज़न करो। जो पहले का बचा हुआ है उसको भी साथ में प्रिपेयर करो, दोनों साथ में प्रिपेयर करो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा पीछे का कुछ आता ही नहीं है, आगे का ये मतलब करते जा रहे हैं, पीछे का कुछ आया नहीं तो इट्स नॉट वन साइडेड, राइट। तुमको 11th के भी क्वेश्चन आते हैं, 12th के भी क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू नो बोथ। तो दोनों भी करो, बैकलॉग्स हो जाएंगे कवर। थोड़ा थोड़ा पार्ट रोज़ करो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, टीवी वगैरह मत देखो, हो जाएगा। मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं आजकल, बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो मत करो। अभी एक ही साल पढ़ना है तुमको। 11th तो वैसे भी तुमने एंटरटेनमेंट किया है, एंजॉय किया है, तो 12th में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, हो जाएगा बैकलॉग कवर। थोड़ा थोड़ा करो रोज़, हो जाएगा। नहीं तो संडे को यू आर फ्री होल डे, संडे को बैकलॉग्स कवर करो। 1 week you do of 12th and Sunday को you do of 11th. So it also works. तो यू गॉट सच इनक्रेडिबल मार्क्स, तो आपका कंसिस्टेंसी एंड फोकस काफ़ी तगड़ा रहेगा, राइट। तो हाउ टू स्टे फोकस ऑल द टाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। So मतलब बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। इफ़ यू आर एमिंग समथिंग देन यू गो देयर, लाइक यू वॉन्ट टू गो देयर, यू नो एवरी मॉर्निंग जस्ट गेट अप, जस्ट से आई वॉन्ट टू डू दिस। मेन थिंग ना, जिनको लगता है कि तुमसे नहीं होगा, उनको प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ो। क्योंकि उसके बाद ना पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स को देख के होता है, बट एक टाइम के बाद लगता है यार ठीक है यार छोड़ दो। बट जिनको लगता है ना तुमसे नहीं होगा, उनको प्रूव करो एंड योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मतलब तुम्हारा स्कोर जब बहुत अच्छा आएगा ना, यू कैन सी इट ऑन देयर फेसेस, बिलीव मी। उनके फेस पे जो खुशी होगी ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। उनका फेस देखो, जिन्होंने बोला है नहीं होगा तुमसे, उनको देखो, हो जाएगा। मतलब फोकस रहो। अगर इफ़ यू आर नॉट फोकस देन यू आर नॉट एमिंग फॉर इट, यू आर नॉट ड्रीमिंग फॉर इट, यू आर नॉट, व्हाट डू वी से, यू डोंट वांट दैट, यू आर जस्ट सेइंग इट, हाँ मुझे चाहिए ये, बस फ्री में चाहिए। नहीं, अगर चाहिए तो हार्ड वर्क करो, इट इज़ पॉसिबल। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम डीप शिद्दत तो यू नीड टू वर्क फॉर इट। Okay, so what was your motivation source throughout the journey? My parents, like, they were the most important part during my whole journey. When I felt I cannot do this, I used to tell my mom, I used to tell my dad, यार पूरा एक दिन गया, एक ही मैथ्स का क्वेश्चन हुआ मुझसे, वो भी पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ। So I used to tell them, I used to discuss with them कि नहीं हो रहा यार, अभी क्या करूँ। तो वो बताते हैं, टॉक टू देम, मतलब उनके पास ना सल्यूशन होता है हर चीज़ का। टेल टू देम, दे विल टेल यू, वो सब कर लेते हैं। तुम यू हैव टू टेल इट टू योर टीचर। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेलिंग इट टू योर पेरेंट्स, टेल इट टू समवन, टेल इट टू योर टीचर. There is someone or the other who is going to help. What was your parents' reaction when they got to know that you got that score? Actually, everyone was surprised, including me. I expected 98, 99. But when we got a call that I got 100, like everyone was surprised, even my sister, everyone was very, very happy. And I guess that is the reaction I always waited for. Like from my childhood, I wanted to see my parents that happy, and I guess they were very happy. Like they were proudly telling everyone that yes, she did it. Actually, you have spent 1 month in this college. So what was your overall experience in this college ये एक महीने में? It is our most beautiful campus you'll see. मतलब very peaceful. मतलब तुम कहाँ भी जाओ, there is a lot of silence. Very beautiful campus. A good
team, I would say. Like we recently had a Mindspark event. So it is a wonderful event. The events you're gonna see here in this college, you are not going to see it anywhere. Believe me, national events होते हैं, बड़े बड़े companies आते हैं. You talk to them, you have conversations with them, you see a lot of new things. मतलब तुमको यहाँ पे जब तुम आओगे ना, you have a lot of things to do. Explore करने के लिए बहुत सारी चीज़ें. There are 40+ clubs and 40+ clubs is not a joke. एंड उससे पता चलता है कि भाई दिस कॉलेज इज़ बेस्ट. मतलब जाना है तो यहाँ पे आओ. आई गेस ये कैंपस देखो, यहाँ पे आके देखो, क्लब्स देखो, वो मोटिवेशन बन जाएगा तुम्हारे लिए. इट्स बेस्ट कॉलेज एंड आई थिंक whoever gets it, they are blessed to be here. Okay, then the final question of this interview, tips for MSCD 2025 aspirants, जो बच्चे आपको देख रहे हो अगले साल आप यहाँ पे आने वाले, what are the tips for them? Study hard, work hard, that is important. Focus मत छोड़ो. कभी कभी लगेगा कि यार मुझे नहीं करना है अभी, हो गया. Don't do that. करो. Like sometimes you can go on a vacation, take a break of 2 days, 3 days, it's fine. Go. ऐसा मत करो कि हाँ भाई 2 साल सिर्फ पढ़े ही जा रहे, ऐसा भी मत करो. Sometimes you need a break. Take a break. वापस पढ़ने को लगो, पढ़ाई करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आने के बाद मतलब लाइक एवरीवन सेज अभी बस 11th-12th कर लो, इधर आने के बाद चिल है. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे भी पढ़ना है, बट यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी जो मे बी दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलेगी. सो यहाँ पे आओ, पढ़ो. इट्स इम्पॉर्टेंट. पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी रखो, मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिस इट, बिकॉज मॉक टेस्ट के बिना तुम्हारे पास बहुत नॉलेज भी होगा, तुमको सब कुछ आता भी होगा. अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुमने एनालाइज नहीं किया क्या हुआ है, मेरा कहाँ पे गलत जा रहा है, मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना है, तो कैसे होगा. लाइक देयर आर समटाइम्स कि हाँ मेरे को ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, मैं वही चैप्टर कर रही हूँ बार बार, पर वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो वो करके फ़ायदा नहीं है. जो वीक है उसके ऊपर भी ध्यान दो. दैट्स इट. So yeah, that was all about the interview. Thank you so much Prerna for the amazing interview. I hope इससे बहुत स्टूडेंट की हेल्प होंगी. Thank you so much for joining. बाकी सभी को all the